So, question number 4 is an object of 5 centimeter is placed at a distance of 10 centimeter from a convex mirror. So now, sign conventions. In convex mirror, only two image formation. Both are virtual element. Both are virtual element. याद रखिएगा. It means U is always negative because it is also left hand side. V is always positive because it is right hand side of. Clear? Now, F is equal to, it is always up and up positive because it is also right hand side. And then H is equal to, this is always positive because above principal axis. And H dash is equal to always positive because also above principal axis but behind a mirror. तो ये आपके नाम से इसमें आपका ये देखिएगा. इसी के बेस में अब m इज इक्वल टू आपका पॉजिटिव होना चाहिए. m पॉजिटिव, v पॉजिटिव, so now this is the virtual. And h dash positive, so now this is the. So now these are the sign conventions for convex mirror. Is it clear? So now given me an object 5 centimeter is placed at a distance. So now x is equal to plus 5 centimeter. Okay, above principal axis. So now the first one is. Second, this planes at a distance of 10 centimeter. So now U is equal to distance of n object. This is minus 10 centimeter. And the third one is radius of curvature. R is equal to plus 30 centimeter. क्योंकि right hand side अपन mirror होता है. So therefore F is equal to R by 2, 30 by 2. Is equal to plus 15 centimeter. Okay, so the second one is after another, but this is the now required formula. So required for either that is the formula of a concave mirror or the convex. Both have the same formula, but only the signs are changed. The signs are changed. Is it clear? So now 1 upon F is equal to 1 upon V plus 1 upon U. So 1 upon plus 15 is equal to 1 upon V plus this what? 1 upon U is how much? Minus 10. So 1 upon 15 is equal to 1 upon V. Sure, plus minus combined. So 1 upon 15 plus 1 upon 10 is equal to 1 upon V. This minus sign is going to be moved on the left hand side. So formally on the right hand side it was negative. After changing on the left hand side it is going to be plus. So now again this is the 30. This is the LCM. So 15 twos are and 10. This is the 1 upon V. So now the 1 upon V is equal to 5 upon 30. So now this 5V is equal to 30. या आप रेसिप्रोकल ऑफ बोथ कर दीजिएगा तो ना 30 upon 5 6 तो V is equal to plus 6 centimeter. Right hand side of mirror. Sure. Now the force you have find out this
ये आपका नाम दिस था, दिस इज ऑल्सो नोन एज अ डिस्टेंस ऑफ एन इमेज. सो द सेकंड वन, लीनियर मैग्निफिकेशन, सेम फॉर्मूला, माइनस v अपॉन u. सो नाउ माइनस v इज माइनस 6 अपॉन u इज व्हाट, माइनस 10. माइनस माइनस इज प्लस, तो देखो ये 0.6 प्लस प्लस ना, v is plus 6. v is okay, v is plus 6 ना, okay, so minus minus is okay 6. यहाँ नहीं तो गलती यहाँ पर है, 0.6. That's good, very fine. m is equal to plus 0.6. That's fine. अब हो गया. Now the third one, height of an image. m is equal to h dash upon h. So now m is equal to, m is what, 0.6 is equal to h dash upon how much, that is 5. So 5 6 are 30. h dash is equal to 3.0. ये भी आपका दिस पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड ऑफ मिरर यानी अपोजिट साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ये देखिए. श्योर. नाउ देन नेचर. नेचर ऑफ एन इमेज देखिए, v पॉजिटिव आपका एंड पॉजिटिव. सो नाउ दैट इज व्हाट इज and h dash is equal to positive. That is right. Find the nature position है आपका देखो ना, ये तो इसके आंसर हो गए. अब आपका देखो ना एक्स्ट्रा में, क्योंकि बस उसके बाद जस्ट आई एम लीविंग टू यू. अब इसका फिगर कैसा होता है पता है? bulging in portion or in surface. Look at this. A principal axis है, वो बोले this is F1, this is, इसको आपका C1 कर देते हैं, इसको F and this is C. ये देखिए आपका नाम this. क्लियर? देखिए आपका नाम इधर F कितना है सर, माइनस 15 सेंटीमीटर, और इधर हो जाएगा प्लस 15 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका प्लस ही होता है, याद रखिएगा. ऐसा क्लियर? इसका जो R इधर होगा, R प्लस 30 सेंटीमीटर, ये यहाँ तक होगा. द डिस्टेंस बिटवीन द पोल टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज योर रेडियस ऑफ कर्वेचर. अब देखिए, अब आपका U देखिए 10 है, इसका मतलब देखिए A B H is equal to 5 centimeter. Any incident ray which is going parallel to the principal axis, टकराने के बाद कहाँ जाती है? Now this is the convex mirror. जी, this is the convex mirror. डाइवर्ट हो जाती है. देन आप इसको क्या करेंगे, पीछे की तरफ लाएंगे तो ये फोकस की तरफ जाएंगे आपका नाम का दस. इसके बाद दूसरी रे, दूसरी रे क्या होती है इसमें देखो, ये ऐसा लगता है, ये इज गोइंग टुवर्ड्स टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर. जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को जाती है, अगेन इट कम बैक फ्रॉम द सेम पॉइंट. तो देखिए कहां पे टकरा रही है, देखो ये देखिए. तो दिस इज A डैश B डैश A. आपने जो बोला था हाइट कहां है, ये देखो, ये यहां गड़बड़ क्यों आ गई? देखिए जब कहीं गड़बड़,
M, H डैश सॉरी, 3 है, ठीक है। ओके, तो घबरा कर नहीं देखो नहीं, तो ये जो आपका A डैश देखो, ये B डैश देखो, मैं तो पूछ रहा हूँ, ये H डैश इज इक्वल टू हमेशा याद रखिएगा कि इसमें इन केस देखो, इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर याद रखिएगा H डैश इज देखो ऑलवेज इसमें स्मॉलर देन H हाइड्रोजन ऑब्जेक्ट से छोटा होगा, छोटा। तो इसका अब देखिएगा इससे प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट का है लेफ्ट हैंड साइड में आपका देखो ये बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, पोल एंड प्रिंसिपल, और दिस ना प्लेस ऑफ एन इमेज, ये आपका राइट हैंड साइड में देखो आपका ये कहां है बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, ये देखिए, और H डैश इज स्मॉलर देन H, ऐसा क्यों? अब ये तो हो गया सब, अब मुझे इसका मतलब क्या होगा कि when the object is placed in between of the principal focus and pole in convex mirror, इसमें दो ही इमेज होती हैं, ओनली टाइम, एक तो जब आपका इमेज कहाँ रखी होगा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में, और दूसरी इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी हो सकती हो, तो उस समय इसका जो होगा कहाँ यूज करते हैं, यूज एज अ रियर व्यू मिरर, गाड़ियों में आप इसका यूज करते हैं, ये जो लगी स्कूटी मोटरसाइकिल कार में जो शीशे लगे होते हैं तो उसमें ये यूज किया जाता है। तो अगर बाय द वे सम क्वेश्चन इज कमिंग ऑन कन्वेक्स मिरर, तो कन्वेक्स मिरर में ओनली 2 इमेज फॉर्मेशन है, याद रखिएगा, इसमें फर्स्ट एट इंफिनिटी होती है, एट इंफिनिटी प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये हमेशा याद रखिएगा, और इसकी जो इमेज बनती है वो कहां बनती है, appears at principal focus, this is appears at principal focus पे होती है, और इसकी यूजेज भी वही रियल व्यू के लिए यूज किया जाता है, और दूसरी जो इमेज फॉर्मेशन होती है कहाँ होती है, इंफिनिटी टू पोल के बीच में गई, जैसे यहाँ पे क्या इन द स्केट इट इज इन बिटवीन ऑफ पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, इज इट क्लियर? सो नाइस, बहुत अच्छा लगा आपने मुझसे क्वेश्चन पूछे, थैंक यू वेरी मच। कभी भी दिक्कत होती है यू कॉल मी, आई कैन कम टू यू।